Hey, hello, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. If you're new to my channel, subscribe और like करना ना भूलिए. अगर मेरे channel में पुराने हो, subscribe कर चुके हैं तो thank you so much, my dear. It is a blessing having you all in my channel. Okay, so today's reading will be a weekly reading for the upcoming week, that is Monday 25th onwards till Sunday. So it will be about the current feelings of your person and what is happening with you as well. So we will dig deeper into the messages and what is there for you in the card. So just stay tuned. So you have to keep something in mind that this all readings are general readings. They may or may not resonate for all of you, but if they do, don't forget to like, subscribe and hit the bell notification. Comment below in the comment section and claim your reading. That will help enhancing your manifestation process. So let's see what is there in the cards for all of you. Ten of Pentacles, Page of Swords. This is for my Scorpio people. Okay, this reading is for my Scorpio people. This side be about your person, what your person is thinking. This side be of you. Okay, so this is Scorpio over here. Judgment, Seven of Cups and the King of Pentacles. Here are my Scorpios. Here is the Scorpio person. So my left side is the Scorpio person and the person in your mind. This is about my Scorpio people. वृश्चिक राशियों के व्यक्तियों के लिए रीडिंग होगी. इस साइड पे आपके व्यक्ति, जो भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो, तो ये साइड में उनका रीडिंग, आपके रीडिंग इस साइड पे. ओके, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सारे रीडिंग्स कभी कभी बहुत रेजोनेट करते हैं, कभी कभी रेजोनेट नहीं करता है. सो जस्ट don't get upset if it is not your story. You can check other signs of yours like Sun, Moon, Venus, rising. Okay, for my Scorpio people, give me a mutual energy. Okay, Four of Wands, Two of Swords, Ten of Pentacles, Page of Swords. So they are stalking on you. Someone is stalking on you. जो भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो आपको अपना हैप्पीली एवर आफ्टर देखते हैं. ओके, बट थोड़ा सा इंडिसीजन में हो वो है. ओके, सो वो अभी कोई मूव नहीं कर रहे हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे इंडिसीजन है. सो इट इज़ गुड टू सी मून ट्वाइस. उनके वो अभी भी डिसाइसिव नहीं है कोई एक चीज़ को लेके. अब वो मतलब एक डिसीजन मेकिंग है, मतलब आपके तरफ आना है कि नहीं, वो अभी तक उस डिसीजन को ले नहीं पा रहे हैं. बट आई फील लाइक आप दोनों के मन में एक मैरिज लाइक सिचुएशन है, आप दोनों के मन में कमिटमेंट है, आपके दोनों के तरफ से कमिटमेंट है. ये व्यक्ति आपके पास्ट में हो सकते हैं जिसके साथ आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड था, एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था. शायद किसी कारण में या तो कोई एक कन्फ्यूजन के लिए या तो आपके पास कोई और एक ऑप्शन आ गई थी, या तो आपने सोचा कि मेरे पास और अच्छा ऑप्शन है, इसके लिए कोई एक दूरियां बन चुकी है आप दोनों के अंदर. जैसे कि मैं देख सकती हूँ एक फैसले बढ़ चुके हैं आप दोनों के अंदर बीच में. और यू नो द मून विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स, आई फील लाइक या तो आपके व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि किसी ने चीट किया है किसी के ऊपर. बट आई फील लाइक देयर विल बी अ रिन्यूअल इन लव बिटवीन थ्री ऑफ यू. between why did I say three of you? Of course if I said three of you, मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है. किसी ने किसी और को चूज़ किया, या तो आपने किसी और को चूज़ किया उनके ऊपर, या तो उन्होंने किसी और को चूज़ किया. बट अल्टीमेटली आप दोनों के मन में, दोनों के ही मन में एक मतलब यू नो दैट इंट्यूजन, आपकी दोनों की इंट्यूजन ही कहती है कि हाँ, हम दोनों के अंदर एक मैरिज लाइक सिचुएशन है. वी कैन बिल्ड इट अप like a commitment. And also with the Page of Swords, they are stalking, they are very curious about you, they are stalking you on social media. And with the Judgment and the Seven of Cups and the King of Pentacles, I feel like Scorpio, आप शायद अपने आप को खुश रखना चाहते हो, and you are not much interested in relationships at this time because of some sort of confusion within you. आपके तरफ से और उनके तरफ से, दोनों के ही तरफ से एक confusion सी बनी है. मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को, जो भी ये व्यक्ति है आपके मन में अभी, उनको ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसे चीज़ें छुपाई है, आपने कुछ डिसेप्शन की है उनके साथ. और आई थिंक दिस पर्सन हुएवर यू आर थिंकिंग ऑफ इज़ कमिंग बैक. आप जो भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो पास से, वो व्यक्ति अभी
लौट रहे हैं अपने मतलब आपके पास से आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछने के लिए, कुछ चीज़ों को बताने के लिए। एंड आई फील लाइक यू आर फीलिंग वेरी कन्फ्यूज। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने किसी और को चूज़ किया उनके ऊपर जो आपके पास से है, या तो ये व्यक्ति कोई नया व्यक्ति है, आपसे छोटे भी हो सकते हैं उम्र में, और आपको ऐसा लगता है कि अभी ये रिलेशनशिप मैच्योर नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी भी पास से उलझे हुए हो, या तो ये व्यक्ति खुद एक कमिटमेंट में है, खुद मैरिड है, या तो खुद का कोई सिचुएशन है जिससे वो अभी तक निकल नहीं पाए हैं, डिसीजन नहीं ले पाए हैं, बट दे सी यू एज समवन वेरी पोटेंशियल ऑफ हैविंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बट वो आपको देखते हैं ऐसे कि हाँ, इस स्कॉर्पियो के साथ मेरा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है। ओके, ये व्यक्ति को ये पता है। A king of pentacles, he could be a Taurus, Virgo or Capricorn, or a Pisces, or you could be a Pisces, or but there is some sort of love that is being offered either from your side or from their side in the near future, in your hopes, in the person's action. What action is the person taking, spirits? King, Knight of Pentacles. ओके, द पर्सन फॉर नाउ, द पर्सन आपके जो भी व्यक्ति है अभी के लिए कोई ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। ही कुड बी अ टॉरस, वर्गो और केप्रिकॉन। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, या तो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं या तो पाइसिस हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये जो भी व्यक्ति है ना, या तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, या तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो है एंड ही इज़ नॉट फीलिंग लाइक ऑफरिंग द लव राइट नाउ टू यू, और दिस कुड बी यू रिफ्यूजिंग टू हैव द ऑफ़र। या तो आप ऑफ़र को ना कह रहे हैं, या तो वो व्यक्ति अभी के लिए ऑफ़र करना नहीं चाहता है चीज़ें, या तो अगर वो ऑफ़र, या तो इस व्यक्ति को एक डर सी है कि हाँ, इनको रिजेक्शन के डर है कि हाँ, मैं अगर फिर से ऑफ़र बनाऊँ मेरे स्कॉर्पियो के पास, स्कॉर्पियो शायद फिर से मना कर दे, क्योंकि आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में हो अभी भी दो व्यक्तियों को लेके, या तो एक ही व्यक्ति को लेके। आपको ऐसा लगता है आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है इस व्यक्ति के बारे में। ये आपके मैरिज सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकती है, या तो कोई ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट के रूप में भी आ सकती है, या तो आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छा कमिटमेंट बन सकता है इन फ्यूचर। yes, they see as someone very abundant, and आप दोनों के बीच में फैमिली सिचुएशन, या तो फैमिली भी इन्वॉल्व रह सकती है, आप दोनों के बीच में आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या तो कहीं से भी एक मतलब या तो वो इंसान बहुत बच्चे जैसा है, या तो बच्चे जैसा बिहेव करता है, या तो आपके दोनों के अंदर में कुछ बच्चे रिलेटेड इश्यूज़ है, ऐसे भी हो सकते हैं। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड हैप्पी फैमिली। यस, डेफिनेटली यू गाइज हैव बीन अ हैप्पी फैमिली, और इट फेल्ट लाइक दिस पर्सन फेल्ट लाइक अ फैमिली, अ होम टू यू, बट फॉर सम रीज़न थिंग्स डिडंट वर्क आउट ड्यू टू सम डिसेप्शन, या तो कोई लाइंग थी, या तो कुछ चीज़ें छुपाई हुई थी, या तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो जा रही थी, या तो आपने कन्फ्यूजन के लिए उनको ना कह दिया था। पर डेफिनेटली यू गाइज हैव अ वेरी हैप्पी वाइब विद इन यू। आप दोनों के अंदर पोटेंशियल है एक हैप्पी फैमिली के तरफ जाने की, और बहुत सारे ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप दोनों मिलके बहुत सारे चीज़ों को ला सकते हो सरफेस में, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ट्रुथफुल होगी, वो पैसा हो, वो इमोशंस हो, यू बोथ आर इमोशनली अबंडेंट, फाइनेंशियली अबंडेंट, या तो आप दोनों जब एक साथ आते हो ऐसे लगती है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली सुलझ रही है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग, but yeah, there is some confusion from your person's side, also from your side, so that is something you guys should keep in mind.